Good morning, students. The next topic is what is the criteria for a good index number? A index number is good if it is free of the errors. So, what kind of errors can be involved in the index numbers? In the index numbers, we can have sampling error, we can have formula error, we can have homogeneity error. So, three types of errors can be there in the construction of the index number. So a good index number should be free of these three types of errors. So if the question can come, if the question comes in the exam, so you can write these things. So there are three types of errors. One is the formula error, another one is the sampling error, third is the homogeneity error. And if the index number is free of all these errors, then it is a good index number. So let's understand about these three types of errors. The one is formula error. As we know that the different statisticians have given the different formulas for calculating the index number. Like we know that Laspre's price index, Paaschi's price index, Fisher's price index, Marshall Edwards, there are many. We are having many formulas, but if we choose the wrong formula and if we make any mistake in the construction of that formula, if we write anything wrong in the subscripts for the formula, if we choose the base year as wrong or the current year as wrong, then there may be an error in the formula. Similarly, for the sampling errors are that if we make an error in the sampling of the commodities involved in the construction of index numbers, then there may be the errors due to sampling, and that those errors are known as sampling errors. The third type of error is homogeneity error. So composition of commodity in the two periods, जो कंपोजिशन हम कर रहे हैं कमोडिटीज़ की, जो दो पीरियड्स दिए हैं, कौन से दो पीरियड? Composition of the commodities in the two periods of being compared gives rise to the homogeneity error. So these are the three types of errors. If an index number is free of these three types of errors, then the index number is good index number. Okay. Next, there are some tests. The very first test is the time reversal test. What is this time reversal test? Time reversal test says that if we are using, means if you are using as, means the time script of any index formula can be interchanged, then it resulting means the result should be the reciprocal of the original index, है ना? For example, अगर मैं कहती हूँ कि PI और I डैश, ठीक है, दो इंडेक्स नंबर्स हैं जिसे आपने I इज द ओरिजिनल वन, I डैश इज द, अगर आपने उसे इंटरचेंज कर दिया है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय PI डैश I. PI डैश I, PI डैश इज इक्वल टू 1 बाय PI डैश I. मीन आपको ये पता होना चाहिए I इज नॉट इक्वल टू I डैश फॉर I गोइंग 1 to K. किसी भी उसके लिए ये इसके इक्वल नहीं है. टाइम रिवर्सल टेस्ट सेज दिस. टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है? अगर आप इन दोनों ईयर्स को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों ईयर्स को, ये आई है, आई और आई डैश, ये एक साल है, ये दूसरा साल है, इनको आपने इंटरचेंज कर दिया. अगर पहले ये बेस ईयर था, ये करंट ईयर था, इसको बेस बना दिया, इसको करंट बना दिया, तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल कब आएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब इंटरचेंज करने के बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट. ओके, अब हमें देखना है कि कौन कौन से फार्मूलाज इससे सेटिस्फाई होते हैं. अगर हम देखें कि क्या लेस्प्रेस इससे सेटिस्फाई होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो आपने P0I निकाला, उसको मल्टीप्लाई करो PI0 से, ठीक है, मतलब हमने क्या किया? चेंज कर दिए बेस ईयर्स, मतलब दोनों लेस्प्रेस से निकाल रहे हैं हम, ठीक है. तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? इसका रिजल्ट 1 के. अगर इसका रिजल्ट 1 के इक्वल नहीं आता, मीन्स इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेस्प्रेस डजंट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट. Similarly, you can see that if Paaschi's test is, means अगर पाशी का क्या होगा? इसका यहाँ पे आप PA से कैलकुलेट कर लोगे. फार्मूला आपको पता है, पहले 0I ले लिया और पाशी से कैलकुलेट किया, फिर I0 ले लिया, फिर पाशी से कैलकुलेट किया. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड
after multiplication it comes out to be equal to 1, then it satisfies the time reversal test. If it doesn't equal to 1, then we say that it doesn't satisfy the time reversal test. Parsees, so parsees भी satisfy नहीं करता, Lasprais भी satisfy नहीं करता. आप देख सकते हैं कितने ही एग्जाम्पल्स और फार्मूलाज को लेकर के हमने किया है, बुक्स में हो चुका है ये, तभी मैंने आपको बताया है. आप डिफरेंट डेटा को लेके देखना कि Lasprais सेटिस्फाई ही नहीं करता टाइम रिवर्सल टेस्ट को. आपको पता चल गया ना कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है. टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि अगर मैं ईयर्स को इंटरचेंज कर दूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आना चाहिए, ओरिजिनल वंस, है ना. तो अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका क्या यूज है फिर, है ना. तो इसलिए अब अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था फिशर, अगर मैं यही इंडेक्स नंबर फिशर से कैलकुलेट करती हूँ, अगर मैं यही इंडेक्स नंबर फिशर से कैलकुलेट करती हूँ तो मैं देखती हूँ इट विल बी इक्वल टू द 1. It will be equal to the 1. That means Fisher satisfies the time reversal test. अब आपको कहना, अगर कोई डाटा दिया हुआ है और आपको कहेंगे आप बताओ कि इट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट और नॉट, पहले आप बेस ईयर और करंट ईयर को लेके निकालेंगे, फिर उनको इंटरचेंज करके निकालेंगे प्राइस इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर वो इक्वल टू 1 आता है तो इट सेटिस्फाइज, अदरवाइज इट डजंट सेटिस्फाइज. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिशर हमेशा टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है, ना Lasprais करता है, ना पार्सेस करता है, ना अदर टेस्ट आप करके देखोगे वो सेटिस्फाई करते हैं. और फिशर जो है वो सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब क्या है कि आप लेटर ऑन आप देखोगे एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, वो उसको भी सेटिस्फाई करता है. हम पिछले लेक्चर्स में कह चुके हैं कि फिशर्स इज द आइडियल इंडेक्स नंबर. मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर मैं बाद में दूंगी. सो देखो, वन पॉइंट इज दिस, व्हाई फिशर इज द आइडियल इंडेक्स नंबर, बिकॉज वन पॉइंट इज Fisher satisfies the time reversal test. Okay, in the next lecture we will see about the factor reversal test. Okay.